Hello everyone and welcome to one more interesting video by the team Procapitalist. This video is completely for educational purpose and not in the form of any investment tip or advice. So let's get started. Today there is a news around Ultratech Cement, which says that Ultratech Cement has decided to invest 18 billion as a part of their strategy to become comprehensive building solutions providers. और इसके चलते पॉलीकैब की स्टॉक प्राइसेस में 17.6% का गिरावट हुआ और केईआई इंडस्ट्रीज के स्टॉक ऑलमोस्ट 20% से करेक्ट हो गए. नाउ बिग क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ मी वाज क्या एक ऐसी न्यूज के चलते पॉलीकैब और केआई इंडस्ट्रीज के स्टॉक प्राइसेस में ऐसा करेक्शन हो सकता है या ये कोई डिमांड सप्लाई का खेल है. सो I thought of let's try to understand कि fundamentals और technicals क्या कह रहे हैं before deciding on any buy or sell. So let's deep dive into this study. But before that, do hit the bell button, do subscribe the channel Procapitalist. Now, Ultratech Cement की Q3 FY के रिजल्ट्स को अगर गौर किया जाए तो कंपनी का पैट, कंपनी का इनकम और कंपनी का नेट प्रॉफिट्स काफी पॉजिटिवली ग्रो हुआ है Q3 FY25 को लेकर. अगर हम पॉलीकैब इंडिया की Q3 FY25 रिजल्ट्स को देखें तो रिजल्ट्स shows very clearly that the company's revenue grew by 20% year-on-year basis. And apart from that, when we talk about the EBIT margin, significant improvement. When we talk about the PAT margin, significant improvement has been observed. And with regard to KEI Industries, the Q3 FY25 was again a significant one, जहां पर कंपनी का नेट प्रॉफिट अराउंड 9.38% से बढ़ा. वहीं कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हैज बीन इंक्रीज बाय 19.80%. सो Q3 FY25 के नंबर्स तो काफी इंप्रेसिव रहे तीनों कंपनी के लिए. पर ऐसा क्या हुआ और ऐसा क्या हो गया? फॉर द सेक ऑफ सच डाउनफॉल वी नीड टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स ऑफ these stocks. So, Polycab India Limited, KEI Industries और Ultratech Limited को हम बारी कंपेयर करते हैं और समझते हैं. Polycab India Limited का अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा जाए तो वह है 70,476 करोड़. वहीं KEI Industries का अराउंड 28,670 करोड़. बट when we talk about Ultratech, let's look at the number. This is a huge number, 301,509 crores. With this, Ultratech Cement के लिए 1800 करोड़ 1800 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करना बहुत छोटी मोटी बात लगती है. वहीं अगर हम इन तीनों कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी कंपेयर करते हैं, सो लेट्स लुक द नंबर. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जहां पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड का 31% है, 23% रिटर्न ऑन इक्विटी है. वहीं केईआई इंडस्ट्री का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी पॉलीकैब के कंपैरिजन में थोड़ा कम है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट अल्ट्राटेक सीमेंट ऑल टुगेदर इट्स डिफरेंट. So return on capital employed is 15%, return on equity is 12%. But with this, it is important for us to understand कि कंपनी के दूसरे फंडामेंटल रेशियोज क्या कह रहे हैं. से फॉर एग्जाम्पल अगर डेट और इक्विटी की बात की जाए, डेट टू इक्विटी की बात की जाए तो पॉलीकैब इज जस्ट हैविंग 0.02 in terms of debt as compared to equity. With regard to KEI Industries, it is 0.10. And with regard to Ultratech Cement, it's 0.28. मतलब यहाँ पर डेट और इक्विटी तो तीनों कंपनी का ऑलमोस्ट काफी स्ट्रांग है, काफी स्टेबल है. लीवरेज को तीनों कंपनी काफी माइंडफुली एम्प्लॉय करती हैं. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कंपनी के फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं. कंपनी के सेल्स नंबर अगर पॉलीकैब के बारे में बात की जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस सेल्स नंबर काफी पॉजिटिव है. 12,000, 14,000, 18,000, 21,000 till date, right? With regard to KEI Industries, again when we talk about the profit and loss statement, sales number काफी छोटे हैं as compared to the Polycab, क्योंकि market capitalization भी काफी कम है as compared to Polycab. So, with regard to the sales number is 5,000, 6,000, 8,000, 9,000 crores year on year basis. And when we compare this number with the profit and loss statement of Ultratech Cement, let's look at. See, the sales number are significantly huge.
when we compare Polytech, KEI, and Ultratech Cement all together. 52,000, 63,000, 70,000, and 71,000. A strong company having a top notch sales number. Apart from that, let's talk about the operating profit of the company. तो जितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ अल्ट्राटेक का है उतनी तो हम सेल्स नंबर देख रहे हैं केईआई की और पॉलीकैब की. सो लेट्स लुक इनटू द नंबर 11,000, 10,000, 12,000 and 12,000. A significant good number with regard to the operating profit. वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ केईआई इंडस्ट्री इज जस्ट 456, 589 एंड 702. सो जस्ट कंपेयर कि कितना फंडामेंटली इनके फाइनेंशियल्स में ही डिफरेंस है. लेट्स लुक इनटू द पॉलीकैब. Again, this number is around very less as compared to the Ultratech Cement. Up Ultratech seems to be, and yes, it is a business giant. और अगर ऐसा business giant केबल्स एंड वायर्स की इंडस्ट्री में स्टेप इन करने की कोशिश कर रहा है तो वो एक अच्छा खासा डिस्ट्रप्शन ला सकता है बिकॉज ऑफ द कैपिटल स्ट्रेंथ विच दे हैव, because of the brand they have created, because of the visibility, and because of the financials, fundamental strong financials which they have. So isn't it interesting to understand what's going around? Okay, let's quickly look into the balance sheet of Ultratech. So the balance sheet of Ultratech Cement says very clearly that the reserve number is significantly higher year on year basis and that is significantly increasing. इतना ही नहीं, कंपनी के फिक्स एसेट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर कंपेयर किए जाए तो पॉजिटिव है और काफी स्टेबल और स्ट्रांग है. कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स आल्सो आर गुड, स्ट्रांग एंड हेल्दी. सो दिस इज अबाउट अल्ट्राटेक सीमेंट जो कि काफी फाइनेंशियली स्टेबल है, स्ट्रांग है, सॉल्वेंट है एंड यहाँ पर काफी टक्कर दे सकता है केईआई और पॉलीकैब जैसी कंपनी को. ना लेट्स टॉक अबाउट केईआई लिमिटेड की बैलेंस शीट को देखें. केईआई इंडस्ट्रीज की बैलेंस शीट को अगर हम देखते हैं तो एज कंपेयर टू अल्ट्राटेक सीमेंट यू विल फाइंड वेरी छोटू मोटू सा बैलेंस शीट हियर. The reserves numbers are just like the company is still in the growing phase as compared to Ultratech. 10x टाइम है Ultratech जहाँ पे 100x टाइम है, वहां पर केईआई इंडस्ट्रीज के नंबर्स काफी छोटे हैं. ओके, सो रिजर्व बेसिस पे देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वी कैन सी अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ. फिक्स एसेट्स भी देखें तो हाँ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंप्रूव हो रहे हैं और कंपनी के इन्वेस्टमेंट भी इन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंप्रूव हो रहे हैं. पॉलीकैब लिमिटेड के बारे में बात की जाए एंड लेट्स डीप डाइव इनटू द बैलेंस शीट ऑफ पॉलीकैब लिमिटेड. रिजर्व्स पॉजिटिव, सिग्निफिकेंटली इंप्रूविंग ईयर ऑन ईयर बेसिस 6,000 से 8,000. कंपनी की अगर डेट की बात की जाए एज कंपेयर टू इक्विटी इज वेरी नॉमिनल, 118, 109, 161 crores ईयर ऑन ईयर बेसिस. सो सिग्निफिकेंटली नॉट अ ग्रेट नंबर, बट हाँ दोनों कंपनी अपने लेवल पर डेट को लिवरेज आउट करने की कोशिश कर रही हैं. विद दिस इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर इन द टेक्निकल एनालिसिस ऑफ दीज थ्री कंपनीज. चलते हैं पॉलीकैब की ओर. पॉलीकैब के स्टॉक प्राइसेस में मंथ ऑन मंथ बेसिस पे काफी करेक्शन हो रहा है और आज ये स्टॉक की प्राइसेस आफ्टर करेक्शन विच वी जस्ट सॉ इज ऑलमोस्ट इन द मंथली डिमांड जोन. इसका अगला मंथली डिमांड जोन इस लेवल पे बनता है जो कि कुछ 43, 44 के लेवल पर है. सो लेट्स सी व्हाट मे हैपन, मे नॉट हैपन, बिकॉज नो वन कैन प्रिडिक्ट द मार्केट. अगर हम मंथली बेसिस पे कहें तो मंथली बेसिस पे आज स्टॉक मंथ डिमांड जोन में आ गया है. वीकली बेसिस पे अगर स्टॉक की एनालिसिस की जाए तो वीकली बेसिस पे साइडवेज से डाउन ट्रेंड यहाँ नजर आ रहा है. डेली बेसिस पे अगर एंट्री के लिए देखा जाए तो एक सिग्निफिकेंट डिप हमें देखने को मिला है और ऐसा लग रहा है कि ये अगर लेवल टूट गया तो यहाँ के लेवल पे इस स्टॉक में वापस नए डिमांड जोन आइडेंटिफाई होंगे, नए सप्लाई जोन के साथ में यहाँ पर टारगेट्स और एंट्री और एग्जिट हमें मार्क करना होगा. With regard to the next company which is under analysis is KEI Industries. So KEI Industries के stock क्या कहते हैं? Let's have a look. Quarterly basis पे KEI Industry के stock prices में अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को गया. मंथली बेसिस पे हम देखें तो इस स्टॉक के अंदर स्टॉक अपने मंथली डिमांड जोन में आ गया है, क्वार्टरली डिमांड जोन में ऑलरेडी क्रॉस करते हुए मंथली में आ गया है. इट मीन्स दैट the stock has hit its monthly demand zone level जहां पर सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर थे. वीकली बेसिस पे देखा जाए तो आज स्टॉक की ट्रेंड लाइन बता रही है इट्स साइडवेज से रेड, मतलब स्टॉक का डाउन ट्रेंड है. ऐसे केसेस में हम डेफिनेटली किसी भी स्टॉक को ऑब्जर्व करना,
प्रेफर करते हैं, एज पर माई एक्सपीरियंस, राइट? आई कैन बी रॉन्ग, सो डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो डेली टाइम फ्रेम पर गैप डाउन ओपनिंग हुई है स्टॉक के अंदर, एंड विद दिस वी कैन सी दैट इस स्टॉक के डिमांड जोन या एंट्री जोन काफी फार नजर आ रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज टू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन अल्ट्राटेक सीमेंट। सो अल्ट्राटेक सीमेंट में अगर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखा जाए तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आप देखेंगे कि इस मंथ में एक गिरावट नजर आई है। अगर इस स्टॉक की डिमांड जोन को आइडेंटिफाई किया जाए मंथली लेवल पर तो वो काफी दूर से नजर आ रहे हैं। वीकली बेसिस पे स्टॉक अप ट्रेंड दिखा रहा है, बट अप ट्रेंड दिखाते हुए किसी स्टॉक में एंट्री नहीं ली जाती है। हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे उस स्टॉक का सपोर्ट एग्जीक्यूशन देखते हैं। तो as far as entry in Ultratech Cement is also concerned, मेरे हिसाब से यहाँ पर एंट्री के लेवल्स काफी दूर हैं, so it could be as good as around 10,080 with a significant stop loss of maybe 500 rupees and with a target of 1:2, right? So this is the complete understanding of Ultratech Cement, Polycab and Kei Industries. So I believe that you will do your own research before investing. And do comment in the comment box what is your key takeaway. Also, subscribe the channel Procapitalist and see you in the next video. Bye-bye.